Shape selective catalyst. Catalysis action depends upon shape of the catalyst or structure of the cavities and the size of reactant and products. Zeolite इनके well known examples हैं shape selective catalyst के. They are honeycomb like structure. मैं इसका एक डायग्राम भी बताता हूँ, NCERT में जो दे रखा है वो भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पर. They are honeycomb like structure that is shape selective catalysts. They are microporous aluminum silicate with 3D silicates in which silicon atoms are replaced by aluminum atoms. Silicates में silicon oxygen होते हैं. Aluminosilicate, some of the silicon are replaced by aluminium. कुछ ऐसा होगा इसमें. The pore size is generally in the range of 260 to 740 picometer, and the general formula of the zeolite are this: NaX by N, AlO2x, SiO2y dot ZH2. क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला है जो हमें एक रफली आइडिया होना चाहिए. यदि सामने आ जाए तो हमें क्लिक होना चाहिए. यूज ऑफ zeolite. It is used as catalyst in petroleum industries for cracking hydrocarbons and isomerism. It converts alcohol directly into gasoline by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons. Then shape selective catalyst में enzymes आते हैं. कौन पढ़ेगा enzymes? देवयानी. हाँ सर. Enzyme catalyst. Enzyme are complex nitrogenous organic compound which are produced by living plants and animals. The characteristic of enzyme catalyst are: first, most highly efficient; second, highly specific in nature; third, highly active under optimum temperature; fourth, highly active under optimum pH; fifth, increased activity in the presence of coenzyme; sixth, influence of induce and poison. तो बेसिकली एंजाइम्स जो डाइजेशंस वगैरह में भी काफी हेल्प करते हैं, वो है. मैं कुछ इसका एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हें एक बार शेयर करता हूँ. वेट अ मिनट. NCERT. मैं शेयर कर रहा हूँ ना एनसीईआरटी.
हेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट, ये हेडिंग यहाँ पर दे रखी है। इसमें स्पेशली हमारे बुकलेट में इसके जो 2-3 डायग्राम में वो कम दे रखे हैं, अदरवाइज ये एज इट इज सेंटेंस पूरा सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये गैसोलीन वाला एग्जांपल एंड ऑल सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी और हमारे बुकलेट में। एंजाइम कैटलिस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स, ये मेनली ये वाला हेडिंग हमें देखना है, यहाँ से एक बार पढ़ना है, और इसमें जो डायग्राम्स दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड देयर सोर्स, किस यूज में आते हैं, किस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट and this diagrams, mechanism of enzyme catalysis, lock and key diagrams, is it visible to everyone, lock and key diagram? Is it visible or not? Yes, Yes, sir. yes, sir. देखो यहाँ पे एंजाइम से की कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्सट्रेट मतलब जिसे हमें ब्रेक करना है, जिसे रिएक्ट करवाना है। एंजाइम शेप सिलेक्टिव, इसका कुछ शेप होगा, सब्सट्रेट में कुछ साइट्स होंगी, एक्टिव साइट्स होंगी, उसमें फिट होगा, फिट होने के बाद उसे ब्रेक करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। उस पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करके उसे क्रिएट करता है, ब्रेक करता है, रिएक्शन होने में हेल्प करता है। इज इट ओके? Centers on the surface of enzyme particles, the molecules of the reactant, that is substrate, which have complementary shape fit into these cavities, just like a key fits into a lock on account of presence of active groups, and activated complexes form, which then compose to yield the products. ये मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो इतना तुम पढ़ लेना यहाँ से। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे नोट उसमें भी, सिर्फ डायग्राम वगैरह नहीं दिए थे। कैटल एंजाइम वाला जो कैटलिस्ट है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, हेडिंग में शेयर कर दूंगा। इज इट ओके? Okay. Now the last section of this chapter, that is colloids. सबसे पहले हम कोलाइड्स में देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है, कोलाइड्स बोले, कोलाइडल सॉल्यूशन बोले, बोथ आर सेम थिंग। चलो मैं इसको थोड़ा सा पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं।
See, we can have three types of solution. एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी हमने एक चैप्टर देखा है, लिक्विड सॉल्यूशन. क्लियर? द in true solution the size of solute particle is less than 1 nanometer. जो solute particles हैं उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा. मतलब solute particles are very small, वो properly mix हो जाएंगे. We cannot differentiate between solute particle and solvent particle when they mix with each other. NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा. तुम NaCl को फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये NaCl, ये पानी के मॉलिक्यूल्स. हम उन्हें विजुलाइज नहीं कर पाएंगे बाय आवर नेकेड आइज और बाय एनी अदर मीन. उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. दे आर होमोजीनियस इन नेचर. ये होमोजीनियस होते हैं. क्लियर? If we talk about colloidal solution, the size of the solute particle is greater than 1 nanometer and less than 1000 nanometer. एक एटम मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में. हमने पढ़ा है बोर्ड्स मॉडल में 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. क्लियर? सो एंगस्ट्रॉम की बात करें मतलब 0.1 नैनोमीटर के रेंज का, मतलब 1 नैनोमीटर से कम. तो होमोजेनियस कहां बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन कहां बनेगा? When the size of the solute particle are in the range of 1 atom, 1 molecule, 2 4 5 एटम भी होंगे, 10 एटम होंगे, चल जाएगा. अब हम बात करें 1 to 1000 नैनोमीटर, चलो एवरेज ले लेते हैं 500 नैनोमीटर. तो 500 नैनोमीटर साइज कब आएगा किसी भी solute पार्टिकल का? जब ऑलमोस्ट 500 एटम्स मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करें. तो ये तो पॉसिबल है पॉलीमर के केस में. तो जनरली पॉलीमर्स विल फॉर्म सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? जो पॉलीमर्स होंगे वो होंगे इस टाइप के. ये हेट्रोजीनियस होते हैं. इन्हें हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं. क्लियर? बट वी कैन डिफरेंशिएट देम यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट विद सम हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं. हम बात करें मिल्क की. मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है. और ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. क्लियर? मिल्क को तुम 2 या 3 दिन रखोगे, पानी अलग, प्रोटीन पार्टिकल्स अलग. यहां पर तुम 2 दिन क्या 2 साल भी रखोगे तब भी NaCl सेपरेट नहीं होगा पानी से. क्लियर? तो ये स्टेबल होते हैं बट इनसे कम स्टेबल होते हैं. 2 या 3 दिन में सेपरेट आउट हो जाते हैं. ये कभी सेपरेट आउट नहीं होते हैं. और ये हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं. मतलब हम तुम्हें दूध दिया जाएगा, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्क, वाटर पार्टिकल्स एंड प्रोटीन पार्टिकल्स. क्लियर? डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. बट यस, यदि हम इन्हें कुछ दिन के लिए रख दें तो वो अपने आप सेपरेट आउट हो जाएंगे. या हम इसको किसी भी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, नैनोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं अलग अलग पार्टिकल. सस्पेंशन, इनमें जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल का दैट इज वेरी वेरी लार्ज, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है. क्लियर? एंड वी कैन सी देम बाय आवर नेकेड आईज. इन्हें डायरेक्टली देखा जा सकता है. एग्जांपल मड वाटर. मड वाटर में जो मड पार्टिकल्स हैं इजीली देख सकते हैं. और यदि तुमने मिक्स कर भी दिया उन्हें, दे विल सेटल डाउन विद इन 1 to 3 मिनट्स. 1 to 3 मिनट में सेटल होंगे, 1 to 3 डेज में सेटल होंगे और कभी सेटल नहीं. क्लियर? ये इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इन्हें अलग से नहीं पढ़ा जाता है. इन्हें ऑलरेडी लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा गया है. अब बचता है ये केस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं आज. इज दैट ओके? थोड़ा सा रफ आइडिया मिला क्या होते हैं कोलाइडल. इसमें जनरली हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इसमें वर्ड यूज होता है डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिस मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं इट इज बेसिकली सॉल्वेंट. एंड डिस्पर्स फेज जो डिसॉल्व हो रहा है इट इज बेसिकली सोल्यूट. क्लियर? तो बजाय सोल्यूट सॉल्वेंट के यहाँ पे यूज किया था डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. Disperse phase can have all the things, solid, liquid, gas. Dispersion medium भी solid, liquid, gas तीनों हो सकता है. वैसे टोटल 3 into 3 9 कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन को हम एलिमिनेट कर देंगे, गैस इन गैस. वो कभी हेट्रोजीनियस नहीं होगा, होमोजेनियस होगा. चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है इतना? ठीक है.
सर बोलो। हेट्रोजीनियस सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जा सकता है? देखते हैं आगे वो सब। हेट्रोजीनियस तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, नॉर्मल से ही सेपरेट हो जाएगा, छोड़ दो उसे, अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। यस सर। देखो, colloidal state, a substance is said to be colloidal state when the size of the particle of dispersed phase is greater than particle of true solution and less than that of suspension solution particle. The range of diameter lies between 1 to 1000 nanometer. तो इनका जो रेंज है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा साइज। Colloidal solution has two things: two phase, disperse phase and dispersion medium. The phase which is dispersed to the medium is called disperse phase, और डिसकंटिन्यूअस फेज, जो डिसकंटिन्यूअस होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं, कनेक्टेड नहीं होंगे। एंड डिस्पर्सन मीडियम इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम विच इज बेसिकली दे आर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे बोला जाएगा? जो हर जगह प्रेजेंट है। So medium in which colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. It is also known as continuous phase or outer phase or external phase. और dispersion phase, disperse phase को कहा जाता है internal phase. कुछ examples जिसने यहाँ पे दिए, gold sol, gold is disperse phase while water is dispersion medium. मतलब solvent solute वही है। Is that okay? Basic is clear? अभिषेक, अदिति, आदित्य, आकाश, अनिकेत। सर डिस्पर्शन मीडियम मतलब नहीं सुनाई दिया वे, वो फिर से बोलो। हाँ सर, डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट आएगा ना? डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेज डीपी मतलब सॉल्यूट। हाँ सर। Differentiating points of colloids. A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed phase as very fine particle in another substance called dispersion medium. The point, the solution and colloid essentially differ from one another by particle size. In a solution, a particle are ions or small molecules. In a colloid, dispersed phase may consist of particles of single macromolecules such as proteins or synthetic polymer, or an aggregate of many atom or ions. जैसा मैंने बताया था, हमें यदि 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जाना है तो या तो हम पॉलीमर ले लें या बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेट हो जाएं, मतलब एज अ होल वो कंबाइन हो जाएं without any bonding just because of some van der Waals force of attraction. Collider particles are larger than simple molecules but small enough remains suspended. They have a range of diameter 1 to 1000 nanometer. तो इसमें वही बताया गया है क्या डिफरेंस है कोलाइडल में, सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम मेनली जो क्लासिफाई करने वाले हैं, that is based on their we can have 3-4 different ways by which we can differentiate them. पहला वे on the basis of their physical state, solid, liquid, gas. Disperse phase, यदि हम बात करें डिस्पर्सन मीडियम की, डिस्पर्सन मीडियम कैन हैव सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्स फेज कैन हैव सॉलिड लिक्विड गैस। चलो, कौन पढ़ेगा इसे? अथर्व, पाटिल। सर टेबल पढ़ना है। यस, सॉलिड सॉलिड ऐसे पढ़ो, डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सोल। और एग्जांपल्स पढ़ते जाओ। हाँ सर, solid in solid, solid solution. Example, some colored glasses and gemstones. Solid and in liquid solution. Paints, इसे सॉल कहते cell हैं, fluid. सिर्फ सॉल ही कहा जाता है। हाँ सर। Solid in gas. Aerosol. Example, smoke dust. Liquid in solid.
एक जेल। मिनट, हाँ चलो पूरा पढ़ लो फिर मैं बोलता हूँ, पढ़ लो पूरा एक बार। Example cheese, butter, jellies. Liquid in liquid, emulsion. Example milk, hair cream. Liquid in gas, liquid aerosol. Example fog, mist, cloud, insecticide sprays. Gas in solid, solid sol. Example pumice, stone, foam rubber. Gas in liquid, foam, froth, whipped cream, and soap lather. ये सारे एग्जांपल्स में तुम फील कर सकते हो ना, जिसे हम बात करें सॉलिड इन सॉलिड, सम कलर्ड ग्लासेस। कलर्ड ग्लासेस में एक ग्लास दूसरे ग्लास में कुछ मिक्स है, सॉलिड इन सॉलिड, जेम स्टोन्स, अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो सब सॉलिड इन सॉलिड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। सॉलिड इन गैस, स्मोक, स्मोक में कुछ सॉलिड पार्टिकल गैसेस में होते हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर। लिक्विड इन सॉलिड, जेल, जेली काइंड ऑफ, मतलब उसमें थोड़ा लिक्विड होता है थोड़ा सॉलिड होता है। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन लाइक मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसॉल। क्लाउड, मतलब गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है तो क्लाउड जैसे हमने लिया, स्प्रे। गैस इन सॉलिड, सॉलिड सोल, इसमें स्टोन में कुछ गैसेस हैं, फॉर्म, रबर। गैस इन लिक्विड, फॉर्म बोला जाएगा इसे। फ्रॉथ हो गया इसका एग्जांपल, व्हिप्ड क्रीम, सॉफ्ट लेदर एक्सेट्रा। बस गैस इन गैस वाला एग्जांपल नहीं है ना यहाँ पर, बाकी सारे हैं। तुमसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, एग्जांपल दिया जाएगा, या फिर तुम्हें बोला जाएगा इस इमल्शन का एग्जांपल कौन सा है, लिक्विड एरोसोल का एग्जांपल कौन सा है, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। अगेन ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम सेकंड वे टू डिफरेंशिएट नेम। यदि डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, वी कॉल इट हाइड्रोसोल और एक्वासोल। डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल, वी कॉल इट अल्कोसोल। if dispersion medium is benzene, benzosol, air, aerosol, मतलब जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसके बेसिस पर हमने उसे नेम दे दिया। इज दैट ओके? सेकंड वन सिंपल है। थर्ड इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो, द वर्ड फिलिक means attracting, the word phobic means less attracting or repulsive. Phobic मतलब repulsive और less attraction, philic means more attraction. So जब disperse phase and dispersion medium, when they have more force of attraction, हम इसे कहेंगे lyophilic. Yeah? When they have less force of attraction, we call it lyophobic. फिलिक मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में, ज्यादा स्टेबल होंगे, और फोबिक मतलब लेस अट्रैक्शन है, वो उतने स्टेबल नहीं होंगे। चलो देखते हैं हम इससे भी। तेजस, तेजस इज देयर? Yes, sir. पढ़ो लायोफिलिक। Lyophilic colloids, liquid-loving salts, intrinsic colloid. The colloidal solution in which the particles of the dispersed phase have a great affinity or love for the dispersion medium are called lyophilic colloids. These solutions are easily formed and the lyophilic colloids are reversible in nature. In case when water acts as the dispersion medium, the lyophilic colloid is called hydrophilic colloid. The common examples of lyophilic colloids are glue, gelatin, starch, protein, egg, albumin, rubber, etc. Is that okay? Lyophilic, the colloidal solution in which particles of the dispersed phase have a great affinity towards the dispersion medium. Lyophilic बोल रहे हैं। हाँ, continue. Lyophobic. Lyophobic colloids, solvent-hating colloids, extrinsic colloid. The colloidal solution in which there is no affinity between particles of the dispersed phase and the dispersion medium are called lyophobic colloids. Such solutions are formed with difficulty only by special methods. These salts are readily precipitated or coagulated upon addition of small amounts of electrolytes by heating or by shaking, and hence are not stable. Further, once precipitated, they do not give back the colloidal salt by simple addition of the dispersion medium. Hence, these salts are also called irreversible salts. They need stabilizing agents for their preservation. In case the dispersion medium is water, the lyophobic salt is called hydrophobic colloid. For example, the solution of metals like
gold and silver hydroxide like aluminum hydroxide, iron hydroxide, metal sulfide like arsenic sulfide, etc. देखो, तो बेसिकली लायोफोबिक जो लेस स्टेबल होंगे क्योंकि उसमें अट्रैक्शन नहीं है, और यदि वाटर सॉल्वेंट है तो हम इसे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं इफ वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर? अब यहाँ पर हमने ये भी देखा दे आर लेस स्टेबल, दे रिक्वायर्ड समवॉट एक्सटर्नल एजेंट टू स्टेबलाइज देम। उन्हें कुछ प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो, कोगुलेट ना हो। द वर्ड प्रेसिपिटेशन मींस टेकिंग कोलाइडल पार्टिकल आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसे डिस्पर्जन मीडियम से बाहर लेकर आना, तो इजीली बाहर आ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? यदि हमने थोड़ा भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड किया। चलो अब दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं हम, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये पूरा टेबल है, तुम्हें उसका बेसिक मीनिंग समझ में आएगा तो टेबल इजीली समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक लायोफोबिक। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में। इजी ऑफ प्रिपरेशन, हमें पता चलता है प्रिपरेशन किसका इजी है, फिलिक का, ज्यादा अट्रैक्शन है, डायरेक्ट मिक्स करके बना सकते हो। व्हाइल लायोफोबिक रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड्स। तो लायोफिलिक इजीली बनेंगे, लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड लगेगी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नेचर, देखो यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर और इरिवर्सिबल नेचर का मतलब ये है, एक बार यदि वो प्रेसिपिटेट हो गए, हमारे पास है डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, हमने इन दोनों को मिक्स किया एंड वी आर गेटिंग कोलाइड्स। क्लियर? हमें यहाँ पे कुछ कोलाइड मिल रहा है। तो व्हेन वी आर गेटिंग दिस कोलाइड, वंस दे गेट सेपरेट आउट, कोलाइड से यदि हम वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ सम मीन्स सम रीजन, देन वी कैन इजीली फॉर्म कोलाइड अगेन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब है यदि वो सेपरेट हो भी रहे हैं, सेपरेट तो होना ही उन्हें, यार 2-3 दिन 4 दिन रखोगे सेपरेट तो होना ही है कोलाइड्स। तो व्हेन दे आर सेपरेटेड वी कैन इजीली फॉर्म कोलाइडल अगेन, इसे रिवर्सिबल बोल रहे हैं। रिवर्सिबल कौन सा है, कौन सा इजीली वापस से कोलाइड बनाएगा, लायोफिलिक। कौन सा इजीली कोलाइड नहीं बनाएगा, लायोफोबिक। दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। देन पार्टिकल नेचर, थर्ड वन, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर टू मॉलिक्यूल्स बट आर बिग इन साइज। तुम देखोगे जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे थे ना इसके लायोफिलिक के, दे ऑल आर पॉलीमर्स। उनका सिंगल मॉलिक्यूल ही बहुत बड़ा होता है, उन्हें ऐसा नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल्स एटम्स का वेट करना पड़ रहा है बनाने के लिए। they themselves are large enough to form the colloidal solution. Clear? उनमें केमिकल बॉन्ड होते हैं आपस में, वो ब्रेक नहीं होते हैं। They are generally polymers. Particles are aggregates of many molecules. उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, weak van der Waals force of attraction होता है। They are very stable. These are unstable, required stresses of a stabilizer. Fifth point, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे नो इफेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे ना तो कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन मींस टेकिंग सॉल्यूट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन दोनों एक ही वर्ड होते हैं। चार्ज ऑन द पार्टिकल, the particles do not carry any charge. This particle move in a specific direction either towards anode or cathode depending upon the charge in an electric field. So लायोफोबिक में कुछ चार्ज होता है, उसका रीजन ही होता है चार्ज होने का, बेसिकली वो जो चार्ज हैं जो उन्हें स्टेबलाइज कर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से कंबाइन नहीं होने दे रहे हैं। लायोफिलिक तो अट्रैक्शन के कारण स्टेबल है, लायोफोबिक स्टेबल इसलिए एक कोलाइडल पार्टिकल, दूसरा कोलाइडल पार्टिकल, तीसरा कोलाइडल पार्टिकल, लेट्स से ऑल ऑफ देम हैव पॉजिटिव चार्ज, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। जो कोलाइडल पार्टिकल दे आर नॉट coming towards each other, they are not combining easily to give the precipitate, तो इन पे कुछ चार्ज होता है। क्लियर? चार्ज के कारण इनकी स्टेबिलिटी आती है फोबिक की, लायोफिलिक की बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। देन द हाइड्रेशन, the particle of colloidals are heavily hydrated due to attraction. Hydrated means surrounded by solvent particles. The particles of colloidal are not appreciably hydrated. हाइड्रेट कौन होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर होगा। क्लियर? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर वो ज्यादा हाइड्रेट होगा। फिर आता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। देखो
जो लायोफोबिक है ना, लायोफोबिक के केस में बोथ द प्रॉपर्टीज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इट विल रिमेन सेम, इसमें ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। इट नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दोनों में देख सकते हो लिखा है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए उनका नियरली सेम है। बट लायोफिलिक के केस में विस्कोसिटी बढ़ रही है और सरफेस टेंशन कम हो रही है। क्लियर? So it is higher than that of dispersion medium viscosity and surface tension is lower than dispersion medium. दोनों का explanation कुछ ऐसा आता है, viscosity denotes force of attraction. So force of attractions are increasing in case of lyophilic. Clear? Am I audible properly? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. आवाज ब्रेक नहीं हो रही ना? जयश्री, करण, कौस्तुभ, खुशी, किरण, No, sir. चलो। तो विस्कोसिटी डिनोट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बट सरफेस टेंशन डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल। तो एक सॉल्वेंट पार्टिकल था, एक सॉल्वेंट पार्टिकल था, बीच में एक सॉलिड पार्टिकल आ गया। व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स कम इन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आपस में अट्रैक्शन कम कर देगा, और सरफेस टेंशन डिनोट करती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम, और विस्कोसिटी डिनोट करती है ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में बढ़ गए। ध्यान रखना ना, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए। टिंडल इफेक्ट ये हम डिटेल में देखेंगे, आगे आएगा। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट व्हाइल लायोफोबिक दे कैन शो टिंडल इफेक्ट। पूरा डिटेल में हेडिंग है आगे प्रॉपर्टीज में। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, precipitated by higher concentration of electrolyte, जनरली नॉर्मल कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बट हमने कुछ ऐसा एक्सटर्नल एजेंट ऐड किया है जो प्रेसिपिटेट करता है, तो काफी ज्यादा अमाउंट लगेगा। एंड दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लो कंसंट्रेशन पे भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। देन माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड may or may not migrate as they may not carry charge. तो यार इन पे चार्ज नहीं होता है। while lyophobic can have charge, they can migrate towards anode and cathode. ये 12th वाला पॉइंट 6 पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज होना। एग्जाम्पल मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर, स्टार्च एंड जिलेटिन, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो लायोफिलिक होते हैं। नेचर में कौन एग्जिस्ट करेगा? जो बेसिकली ज्यादा स्टेबल होगा, जो स्टेबल नहीं होगा नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनऑर्गेनिक नेचर के कोलाइड्स लाइक ट्रांजिशन मेटल, सॉल्ट्स एंड वाटर, गोल्ड सोल, ये जनरली लायोफोबिक होते हैं। इन्हें हम इंटेंशनली बनाते हैं फोर्सफुली। Is there any doubt differentiate distinction between lyophilic and lyophobic colloids stable में? क्वेश्चंस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सर टिंडल इफेक्ट आगे आएगा, मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हाँ सर 12 पॉइंट में और मे नॉट माइग्रेट, उनके पास चार्ज नहीं तो मे क्यों फिर? जनरली चार्ज नहीं होते हैं, बट कुछ रेयर केसेस में चार्ज आते हैं। कुछ केसेस में उन पे चार्ज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम फॉर्मेशन प्रोसेस, बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज। ये भी थोड़ा सा डिटेल में आगे आने वाला है। Fourth way to differentiate them on the basis of chemical composition. मेटल सॉल तो मेटल है, वाटर में मेटल सॉल बोल दिया। नॉन मेटल है नॉन मेटल सॉल, सॉल ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ लो खुद से, वो समझ में आ जाएगा कि क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन।
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये अगेन हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कौन से पॉजिटिव सोल्स होते हैं, कौन से नेगेटिव सोल्स होते हैं. वी कैन हैव डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. पॉजिटिव सोल्स, metal oxides and hydroxides, some examples are given. Basic dye, methylene blue, Bismarck brown, ये कुछ पॉजिटिव सोल है. नेगेटिव सोल में तुम देखोगे मेटल सोल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दे आर मेटल सोल्ट. सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिव सोल्स. एसिडिक डाइस आर नेगेटिव सोल्स. नेचुरल सोल, ब्लड, क्ले, चारकोल, latex rubber, dust particle in water, starch, carbon particles in smoke, gum, ये सारे नेगेटिव सोल्स हैं. पॉजिटिव में मेनली वी नीड टू लर्न, मेमोराइज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. बाकी मेटल सॉल्ट, सल्फाइड सॉल्ट, दे आर नेगेटिव डिसॉल्ट. नेगेटिव चार्ज होगा इन पर, उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. इज दैट ओके दिस पेज? Sixth, one of the useful way to differentiate them on the basis of types of particle of dispersed phase, मतलब solid particle के टाइप पर, multimolecular, macromolecular and associated colloid. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसे पढ़ते हैं. मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ पास में आ जाएंगे और एग्रीगेट होके कोलाइडल साइज में चले जाएंगे. इसे कहा जाएगा मल्टीमोलिक्यूल, राइट. मैक्रोमोलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल काफी बड़ा होगा. ऐसा कब होगा, जब वो पॉलीमर होंगे, सी 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 सी, मतलब पॉलीमर्स के केस में ऐसा पॉसिबल है, राइट. मैक्रोमोलिक्यूल. एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन पे तो एक दूसरे से दूर रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, बट इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, देन on increasing concentration they form colloidal salt. At low concentration they will form true solution, but at high concentration they will form colloidal solution. इन्हें कहा जाता है एसोसिएटेड कोलाइड. चलो कौन पढ़ेगा इसे? अपूर्व बागुल. Apurv, can you hear me? पढ़ो, पढ़ना है उसे अनम्यूट करके. सानिका. Yes, sir. Multimolecular colloids. Multimolecular colloids. In this type, the particle consists of an aggregate of atoms or small molecules size less than 1 nanometer. For example, souls of gold atoms and sulfur molecules. In this colloids, the particles are held together by van der Waals forces. Macromolecular colloids. In this type, the particles of the dispersed phase are sufficiently big in size to be of colloidal dimensions. These macromolecules forming the dispersed phase are generally polymers having very high molecular masses. These colloids are quite stable and resemble true solutions in many respects. Naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, enzymes, gelatin, etc. Associated colloids, micelles. These are the substances which behave as strong electrolytes at low concentration but behave as colloidal particles at high concentration. They are associated with particles. These associated particles are also called micelles. Example, soap. देखो, जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं बेसिकली लो कंसंट्रेशन पे तो ट्रू सॉल्यूशन जैसा एक्ट करेंगे, बट इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन they will associate with each other and they will go into the size of colloidal particle. वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चले जाएंगे. और जब ऐसा होगा तो जो भी साइज, जो भी बनेगा 1 to 1000 नैनोमीटर का साइज वाला पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल का एसोसिएट, उसे कहा जाता है माइसेल्स, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड. तुम देख सकते हो एक डायग्राम दे रखा है नीचे, ये एसोसिएटेड कोलाइड का डायग्राम है. बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आके मर्ज हो गए. क्लियर? इसे कहा जाता है माइसेल्स. इज दैट ओके?
लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन पे माइसेल। तो बेसिकली लो हुआ ट्रू सॉल्यूशन, हाई हुआ माइसेल्स फॉर्मेशन। वो लिमिटिंग कंसंट्रेशन जिसके बाद हम हाई बोलेंगे, दैट लिमिटिंग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC। CMC मींस वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें माइसेल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं माइसेल्स क्या है एग्जैक्टली। ऋतुजीत, ऋतुजीत, सिद्धि, Yes, sir. पढ़ो। Michaels are relatively small spherical structure composed of anywhere from a few to few thousand molecules. They attract one another to reduce surface tension with the membrane of the cell. Formation of Michael takes place only at particular temperature. That temperature is called as Kraft temperature. Concentration above which Michael formation become appreciable is termed as critical Michael concentration. Its value depends Basically, upon the nature. just a minute. The formation of micelles takes place only at a particular temperature. मतलब उस टेम्परेचर के नीचे कभी भी माइसेल्स नहीं बनेंगे। So the minimum temperature for which micelles formation takes place is called Kraft temperature, KRAFT, Kraft temperature. और वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर माइसेल्स बनेंगे, that concentration is called critical micellization concentration. Continue. Its value depends upon the nature of DP and DM. Example, surface active agent. Surfactant which decrease the surface tension like soap, detergent form Michael beyond CMC. That is minus 10 to power minus 3 mole liter of soap. Usually longer hydrophobic chain and smaller is its CMC. Also CMC increase with decreasing polarity of DM. The Michael formation takes place only above the particular temperature called as Kraft temperature. At CMC, Michael are spherical shape, but they start flattening with size, with increasing in the concentration, and ultimately form a sheet of film-like structure, which have thickness of 2 molecules. And these are called as laminar Michael or MC brain Michael. Mechanism Is of it okay? Michael formation. So basically, एक मिनट, माइकल नहीं माइसेल्स बोलते हैं इसे, मिसेल्स बोलते हैं बेसिकली एग्जैक्टली। तो इसे यहाँ पर हमने देखा मिसेल्स क्या होते हैं, उनका कैसे फॉर्मेशन होता है। जो मिनिमम कंसंट्रेशन है CMC, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर देम। अब हम ये देखते हैं कैसे ये बनते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन। या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसे पढ़ते हैं। हमारे पास जनरली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आर COONA, दिस इज का वन ऑफ द एग्जांपल जो सॉफ्ट डिटर्जेंट में होता है, Na+O-। वे जो RCO- है ना, दिस आर द लॉन्ग चेन कंपाउंड। ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है, इनमें एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। नेगेटिव चार्ज वाला वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर में नेट डायपोल है। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक। जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोफिलिक, एंड द आर हाइड्रोकार्बन एंड इज हाइड्रोफोबिक। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड है, वो सब एक के पास आते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ चला जाता है। ऐसा एक स्फीयर सा बन जाता है। RCO- में जो माइनस चार्ज है वो आउटर सरफेस पर, और R वाला पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो इनर सरफेस पर। क्लियर? कुछ ऐसा हो जाता है। तो एक स्फेरिकल शेप का बन जाएगा, सारे के सारे हाइड्रोफोबिक एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ पानी की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये बनने की टेंडेंसी बढ़ती चले जाएगी। सो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा इसको बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड CMC। क्लियर? ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे डिटर्जेंट डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। देखो, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे आर जनरली ऑयल पार्टिकल्स, दे आर हाइड्रोकार्बन। पता है पानी से डायरेक्ट
वॉश करने पे डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल्स हमारे जो भी क्लॉथ्स हैं उससे रिमूव इसलिए नहीं होता है बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉन पोलर इन नेचर एंड वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर पोलर नेचर का है, वो नॉन पोलर के साथ कंबाइन नहीं हो पाता है, कंबाइन होकर उन्हें बाहर नहीं लेके जा सकता। क्लियर? होता क्या है, लेट से ये डस्ट पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल के आसपास जब हमने डिटर्जेंट अप्लाई किया, डिटर्जेंट का जो हाइड्रोकार्बन एंड है, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? ऐसा कुछ उसके अराउंड पूरा माइसेल्स बना देते हैं अट्रैक्ट होकर, और उसके बाद ये जो स्फीयर बनता है इसमें नेगेटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बाहर की तरफ। जब तुम डिटर्जेंट अप्लाई करने के बाद उसको वाटर से वॉश करोगे, दिस विल बी अटैच्ड टू द वाटर, नेगेटिव चार्ज, और वो वाटर अपने साथ इसको माइसेल्स को बाहर लेके जाएगा। एट द सेम टाइम जो डस्ट पार्टिकल उस पे हैं, ऑयल पार्टिकल उस पे हैं क्लॉथ्स पर, वो भी बाहर चले जाएंगे। इसलिए डिटर्जेंट अप्लाई करने के बाद जब पानी से वॉश किया जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं, बिना डिटर्जेंट के वो डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल्स नहीं रिमूव होते हैं। इज दैट ओके? यही सब कुछ लिखा है मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन में। सम एग्जांपल्स आर गिवन, सोडियम स्टीरेट, सोडियम लोरेल सल्फेट। इसमें पता है जितनी लॉन्ग चेन होगी, जितनी बड़ी चेन होगी, जैसे तुम देखोगे C17 17 कार्बन की चेन है यहाँ पर, लार्जर द चेंज लेसर द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें तो जाना है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। यदि एक ही चेन काफी बड़ी हो गई तो डेफिनेटली हमें कम मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें जाने के लिए। तो जितनी बड़ी चेन होगी उतना कम क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन होगा। यू कैन रीड फ्रॉम हियर टू हियर, अपने से एक बार पढ़ लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब कुछ यहाँ पर है। क्लीनिंग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशंस। वेट कर रहा हूं मैं। चलो हो गया इतना। धनंजय पढ़ लिया है, चले हम आगे। अगेन वही मैकेनिज्म डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, कैसे डस्ट पार्टिकल को, ग्रीस मतलब वही डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल्स, उन्हें रिमूव किया जा रहा है। हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड, ओके। यहाँ सब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्व। फॉर लायोफिलिक वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल मेथड, उन्हें तो डायरेक्ट मिक्स करेंगे बन जाएगा। बट लायोफोबिक बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स लगती हैं। फर्स्ट वन कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में बेसिकली कंडेंस करना, मतलब हम गैस को कंडेंस करते हैं लिक्विड में,
तो यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड का जो मीनिंग होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, इन सभी को पास में लाके मर्ज कराना। तो कुछ यदि हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल से बड़े साइज में जाना चाह रहे हैं, हम इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और एक सेकंड होगा, बड़ा पार्टिकल होगा जिसे ब्रेक करेंगे। तो कंडेंसेशन छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना। तो कुछ केमिकल मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स हैं इसकी। पहले केमिकल मेथड्स, डबल डिकम्पोजिशन। अगेन ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि ये कुछ मेथड है और इसके रिएक्शंस जो एग्जांपल दे रखे हैं। डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक सल्फाइड को हॉट वाटर में H2S में मिक्स करो तो ये आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा। और ये जो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा ना, इसके बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलके कोलाइडल साइज में चले जाएंगे। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर वन मोर एग्जांपल इज गिवन, एंटीमनी सल्फाइड का दे रखा है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन, तो अगेन रिएक्शंस क्या हो रहे हैं वो नाम हमें हल्का सा ध्यान होना चाहिए। यदि ऑप्शन दे रखा तो हमें क्लिक होना चाहिए। SO2 + H2S, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा सल्फर कोलाइडल साइज में चला जाएगा। ध्यान रखना, कोलाइडल साइज में गया सल्फर, इसका मतलब हुआ बहुत सारे सल्फर पास पास में आ गए और वो कोलाइडल साइज में कन्वर्ट हो गए। इसका मीनिंग ये होगा। देन रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस में तुम देखोगे गोल्ड +3 से 0 में रिड्यूस हो रहा है। तो गोल्ड रिड्यूस हुआ, गोल्ड के बहुत सारे एटम कोलाइडल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो गए, उस साइज में चले गए 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर? सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन फॉर रिडक्शन। देन हाइड्रोलिसिस, FeCl3 का हाइड्रोलिसिस किया, FeOH ऑल्टराइज बना। LCl3 का हाइड्रोलिसिस किया, LOH ऑल्टराइज बना। और ये जब बनते हैं तो कोलाइडल साइज में चले जाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो बैठ के तुम्हें एक एक दो बार लिखनी पड़ेंगी और पढ़ना पड़ेगा। तो केमिकल मेथड्स में डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ये 4 मेथड्स हैं, चारों के एग्जांपल। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल मेथड्स, सॉरी फिजिकल मेथड्स। अभी केमिकल देखे थे हमने। फिजिकल मेथड्स, by exchange of solvent, excessive cooling, by condensing vapor of a substance into solvent, by exchange of solvent। देखो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इसमें में। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्लियर? एक डिस्पर्स फेज इस डिस्पर्जन मीडियम में इजीली डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो लायोफिलिक होंगे, इजीली डिसॉल्व हो पा रहा है। बट द सेम डिस्पर्स फेज कैन नॉट डिसॉल्व इन द अनदर डिस्पर्जन मीडियम, इसे हम बोलते हैं DM डैश। अब क्या करते हैं, पहले जिसमें डिसॉल्व हो सकता है उसमें डिसॉल्व कर देते हैं, फिर डिस्पर्जन मीडियम, सेकंड डिस्पर्जन मीडियम को इसमें ऐड कर देते हैं। देन बाय सम मींस वी नीड टू रिमूव फर्स्ट डिस्पर्जन मीडियम। समझना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। वाटर में NaCl डिसॉल्व हो सकता है बट केरोसिन में नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, वाटर में NaCl डिसॉल्व कर देते हैं और एक बार वो डिसॉल्व हो गया, नाउ वी नीड टू ऐड केरोसिन इन इट, तो हम केरोसिन ऐड कर देंगे, 2 डिस्पर्जन मीडियम आ गए। किसी मीनिंग से या किसी के यूज से हम उस पहले मीडियम को, वाटर को रिमूव करेंगे। यदि वाटर रिमूव कर दिया तो डिस्पर्स फेज डिसॉल्व फॉर्म में रह जाएगा केरोसिन में, सेकंड मीडियम में। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर? देन एक्सेसिव कूलिंग, चलो वो पढ़ के ही समझ में आएगा, कोई पढ़ो तो फिर उसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। कौन पढ़ेगा? संकेत पवार। संकेत, कैन यू हियर मी? भव्य, हाँ संकेत पढ़ो। फिजिकल मेथड से पढ़ना है संकेत। संकेत, कीप ऑन अनम्यूट मोड। By exchange of solvent, when a true solution is mixed with an excess of the other solvent, in which the solute is insoluble but solvent is miscible, a colloidal sol is obtained. For example, when a solution of sulfur in alcohol is poured in excess of water, a colloidal sol of sulfur is obtained. When a solution of phenolphthalein in alcohol is poured in excess of water, a white sol of phenolphthalein is formed.
Phenolphthalein I2 sulfur salt can be prepared by this method. Second, excessive cooling. Molecules of certain substance condense together on excess cooling to form colloidal-sized particles. The colloidal salt of ice in an organic solvent such as CHCl3 or ether can be obtained by freezing a solution of water in the solvent. The molecules of water which can no longer be held in solution separately combine to form particles of colloidal size. Third, by condensing vapors of a substance into solvent. Substances like sulfur and Hg in water are prepared by passing their vapors in cold water containing small amount of stabilizing agent like ammonium nitrate. बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सेसिव कूलिंग में क्या होगा, हमारे पास एज्यूम करो एक डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने एक लिक्विड ओरेट किया, मतलब अभी लिक्विड प्लस लिक्विड है क्या। अब हमने इसको इतना एक्सेसिव कूल किया कि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट के बीच फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में चले गए। एक ही बात है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक तो फ्रीज आउट हो जाएगा, एक लिक्विड फ्रीज आउट हो गया, दूसरा लिक्विड के फॉर्म में रह गया। जब वो फ्रीज आउट हुआ तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ आकर कोलाइडल साइज में चले गए, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में चले गए। एक्सेसिव कूलिंग बाय कंडेंसिंग वेपर, substance like sulfur and mercury in water are prepared by passing their vapors in the cold water. जब वो वेपर्स होंगे, कंबाइन होंगे, मर्ज होंगे, अगेन वो कुछ कोलाइडल साइज में चले जाएंगे। तो हमने दोनों में एक्सेसिव कूलिंग में लिक्विड से सॉलिडिफाई किया है और कंडेंसिंग में वेपर से गैस में वेपर गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट किया है, उसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट किया है, कंडेंस किया है। तो जो छोटा साइज था उसे बड़े साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो पहला था हमारा बेसिकली जो मेथड था कोलाइडल बनाने का, कंडेंसेशन। सेकंड मेथड है डिस्पर्सन। कंडेंसेशन में छोटो जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है पार्टिकल का, उसे 1 नैनोमीटर से बढ़ा रहे हैं। इन केस ऑफ सेकंड मेथड डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्स करना, ब्रेक करना। if the particle size are greater than size of the particle is greater than 1000 nanometer, now the task is we need to break them below 1000 nanometer, 1 से 1000 nanometer के बीच में लाना है डिस्पर्सन मेथड में। तो डिस्पर्सन मेथड मैकेनिकल डिस्पर्सन बाय कोलाइडल मील। देखना कोलाइडल मील क्या होता है, दो मेटेलिक सर्कुलर डिस्क होती है। दिस सर्कुलर डिस्क आर रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे तुम देखोगे सस्पेंशन, सस्पेंशन मींस व्हिच हैज साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन डाला हमने, सस्पेंशन डालने के बाद इन दोनों प्लेट के बीच में इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है जो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। जैसे आटा चक्की, व्हीट फ्लोर जो जिसे हम बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तुमने शायद पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो इसके बीच में व्हीट जाता है, व्हीट क्रश हो जाता है, क्रश होने के बाद वो यहाँ से बाहर आ जाता है फ्लोर के फॉर्म में यार। तो उनके बीच में इतना गैप रखा जाता है कि वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, वो कोलाइडल साइज में चला जाए। तो सिंपल सा मैकेनिकल मेथड है। कोलाइडल मील में हमने कुछ बड़े पार्टिकल यहाँ पे डाले, बड़े पार्टिकल इन दोनों मेटेलिक व्हील के बीच में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। and these two metallic wheels are rotating in opposite direction up to this many speed, 7000 revolution per minute, which is very very high. एक बार देखो ये खुद से, इतना जो फ्लो डायग्राम वगैरह दे रखा है पढ़ लो। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। बेसिकली ये दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है।
इसमें हम पार्टिकल को बड़े पार्टिकल से पहले छोटे में कन्वर्ट करते हैं, फिर अगेन उसे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। देखो क्या किया जाता है इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड, सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड लिए हैं जिसका हमें कोलाइडल सॉल्व बनाना है। लेट्स से गोल्ड के मेटल्स हैं, गोल्ड बार है। अब इस गोल्ड बार में हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। जैसे ही हम हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, वी नीड टू मेंटेन स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, ताकि वो स्मॉल डिस्टेंस के बीच में लिक्विड आ जाए जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो। तो वी हैव वन फॉर्मूला, हीट जनरेटेड इज आई स्क्वायर आर टी। जितना मतलब तुम उसमें रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, आई स्क्वायर आर टी। और वो हीट इतना ज्यादा जनरेट होता है सो दैट दिस some part of this gold bar, some atoms of gold will vaporize। मतलब बड़े से छोटा क्या डिस्पर्स किया सबसे पहले तो हमने, जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होंगे, वेपराइज होंगे। ये जो लिक्विड है ना डिस्पर्सन मीडियम, इसको हमने इतने कम टेम्परेचर पे मेंटेन रखा, आइस बाथ में मेंटेन कर रखा है, ताकि सारा का सारा जो वेपर्स है उससे कांटेक्ट में आने के बाद कंडेंस हो जाए, कंडेंस होके कोलाइडल साइज में चला जाए। तो इट इज अ both the method, dispersion as well as condensation। पहले बड़े मेटल बार को डिस्पर्स किया, फिर कंडेंस किया उनके वेपर्स, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के हेल्प से बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। पेप्टाइजेशन, the term has originated from the digestion of proteins by the enzymes pepsin। Peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal solution by shaking it with a dispersion medium in the presence of a small electrolyte। तो जो precipitation होता है, precipitation का just opposite होता है peptidation। precipitation मतलब solid sol बाहर आ गया, इसको वापस से हम कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में, कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम इसे बोलेंगे पेप्टाइजेशन, अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो तीनों एक्सप्लेन किए, एक बार पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसे? हाँ नरेश। हाँ सर। पढ़ो तीनों। This process involves dispersion as well as condensation. Colloidal process involves salts of less reactive metals such as gold, silver, platinum, copper, lead, etc. can be prepared by this method. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium as shown in the figure. The intense heat produced vapors the metals, which then condenses to form particles of colloid size by surrounding cooling mixture ice. A slight trace of KOH is added in water to stabilize colloidal solutions. Ultrasonic dispersion. KOH यहाँ पर स्टेबलाइजर जैसा हेल्प कर रहा है, उनको स्टेबलाइज कर रहा है ताकि वो जल्दी से कोगुलेट ना हो, प्रेसिपिटेट। कंटिन्यू। Ultrasonic vibrations. Dispersion. Ultrasonic vibration having frequency larger than audible range can bring about the transformation of coarse suspension or liquids like oil, mercury, etc. into colloidal range. This is the latest method for preparation of metal oxide and metal sulfide salts from their coarse suspension. It is a suitable technique for oils also. This method also comprises both dispersion and condensation. Peptidation. The term has originated from the digestion of proteins by the enzyme pepsin. Peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte. Is it okay, all three? खुद से एक बार और पढ़ोगे बाद में अच्छे से, तो मतलब सारी चीजें थियोरेटिकल है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। जस्ट मैं इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम एक बार सुनोगे तो मेमोराइज करने में थोड़ा इजी रहेगा। पेप्टाइजिंग एजेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है, उसे एक्सप्लेन कर रखा है। चलो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। हमारे पास प्रेसिपिटेट बन गया है FeOH होल थ्राइस का, क्लियर? इस प्रेसिपिटेट में हमने कुछ पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड किया, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जो उसे पेप्टाइज कर रहा है, मतलब फर्दर उसे कोलाइडल में कन्वर्ट कर रहा है।
होगा ये Fe3+ तुमने जो ऐड किया है ना, हर एक कोलाइडल पार्टिकल वो Fe3+ को अब्सॉर्ब करेगा। तो पहले ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल से ऐसे आपस में अटैच थे, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव, इफ ऑल कैन एब्सॉर्ब द सिमिलर Fe3+, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल होंगे और सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो फाइनली दिस पॉजिटिव चार्ज will separate out from each other. Is that okay? So जो पेप्टाइजिंग एजेंट है, it is providing some charge on them ताकि वो एक दूसरे के पास ना आए, दूर रहे, जो ऑलरेडी एग्रीगेट हो गए थे वो सेपरेट आउट हो जाए। क्या इतना क्लियर है? वो डायग्राम से समझ पा रहे हो? दिस डायग्राम आज तो हमारा चैप्टर नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट बचा है, अराउंड 1.5 आवर और बचा है इसमें भी, इमल्शन तक है। We'll need one more lecture next week. चलो प्यूरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं आज। Purification and properties of colloid. Purification of colloid. First of all, why we need purification of colloidal solution? Colloidal solution हम जहां भी यूज कर रहे होते हैं उसमें during using of colloids, basically we intentionally or unintentionally we are going to add some impurities, और वो impurity उन्हें destabilize करती हैं, उन्हें precipitate होने पे मजबूर करती हैं। यदि वो प्रेसिपिटेट हो गए तो कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। और इसका काफी सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ब्लड, एक कोलाइडल सॉल्व है, यदि उसमें से हीमोग्लोबिन सेपरेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, तो ब्लड का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? ब्लड का डायलिसिस होता है हमारे किडनी में। इवन किसी की किडनी यदि डैमेज भी हो जाती है, वी हैव सम एक्सटर्नल डायलिसिस मेथड प्रोसेस। क्लियर? तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन में वो यूज आती है ताकि वो सेपरेट आउट ना हो, कोलाइड से प्रेसिपिटेशन ना हो। चलो कौन पढ़ेगा ये? स्वानंद? यस सर। पढ़ना चालू करो। Purification of colloidal salts. क्या हुआ, पढ़ो। हाँ सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। The colloidal salts obtained by various methods are impure, contain impurities of electrolytes and other soluble substances. These impurities may destabilize the salt, hence they have to be removed. A very important method of removal of soluble impurities from salts by a semi-permeable membrane is known as dialysis. Dialysis. It is. चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Since particles in true solution, ions or smaller molecule can pass to the animal membrane, the parchment paper or telephone sheet, but colloidal particle do not. देखो यहाँ पे ये बोल रखा है मेनली, हम क्या करते हैं, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लिया या हमने कुछ ऐसा मटेरियल लिया जिससे छोटे पार्टिकल पास हो सकते हैं। हमारा कोलाइडल साइज तो बड़ा होता है, इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। क्लियर? एट द सेम टाइम कोलाइड्स के साथ साथ इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, और जनरली इम्प्योरिटीज होती हैं आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो जाते हैं।
हम इसमें से सॉल्वेंट को पास करेंगे। सॉल्वेंट को जब पास करेंगे दे विल टेक इम्प्योरिटीज विद देम। तुम देख सकते हो इस फ्लो डायग्राम में, यहाँ पे प्योर वाटर को पास किया, वो अपने साथ इस इम्प्योरिटी को बाहर लेके चले जाएंगे और उस पार्चमेंट पेपर में, पार्चमेंट बैग में सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, कोलाइडल सॉल्ट। इज दैट ओके? किडनी में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं ताकि जो आयंस है ना, वो आयंस और फोर्सफुली बाहर आ जाएं। सो डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे। स्मॉल आयंस कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड दे कैन इजीली कम आउट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? देन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोलाइडल पार्टिकल्स can pass through the normal filter paper but they do not pass through ultra filter paper। देखो करेंगे क्या, हमारे पास एक एम्प्टी वेसल लिया हमने। अब इस वेसल पे हमने यहाँ पे लगा दिया कुछ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सो अल्ट्रा फिल्टर पेपर विल, ये किसको क्रॉस नहीं होने देगा, कोलाइडल पार्टिकल्स को। हमने कोलाइडल सॉल्ट विद इम्प्योरिटी यहाँ पे डाला, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे आ गया, इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ गई नीचे, बट क्या नहीं आया हमारे पास, कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रह गए। कोलाइडल पार्टिकल को यहाँ से कलेक्ट किया और कलेक्ट करके फर्दर दूसरे प्योर डिस्पर्जन मीडियम में जिसमें इम्प्योरिटी नहीं थी वहां पे ऐड कर दिया, तो सेपरेट हो गई इम्प्योरिटीज। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन दिस मेथड कोलाइडल solution are purified by carrying out filtration through special type of graded filters called ultrafilters. This filter papers allow only the electrolyte to pass through. This filter paper are made of particular pore size by impregnating with colloidal solution and subsequently hardened by soaking in formaldehyde colloids in order to accelerate the filtration. To such filter paper increased pressure or suction is employed ताकि वो फास्ट प्रोसेस फास्ट हो जाए। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। होमवर्क तुम अपने अकॉर्डिंग इसके एक्सरसाइज देख लेना जहां तक हमारा कवर हुआ है। कि पहले 2 सेक्शन कवर हो गए, एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हो, बट हमारा अभी भी थर्ड सेक्शन में आधा पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सर, हाँ सर मुझे पिछले वाले लेक्चर में एक डाउट था। बोलो। सर, केमिस्ट ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन क्यों इंक्रीज होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे मान लो हमारा A2 जाके एब्जॉर्ब होने वाला है इस सरफेस पर, या इस सरफेस पे जब A2 जाके एब्जॉर्ब होने वाला है तो A2 और A2 के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, A2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब तो जाके वो दूसरे से अटैच होगा। और जो इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। पर सर अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो AA के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मतलब तो हो गया तो फेवरेबल नहीं गया। हमें बॉन्ड तो बनाना है इन दोनों के बीच में ना, A2 और इस मेटल सरफेस के बीच में, या जो भी ये सरफेस है एब्जॉर्बेंट सरफेस। हाँ सर। तो हमें ये इनके बीच का तो बॉन्ड को ब्रेक करना ही है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना ही है हमें। हाँ सर, समझा। ठीक है, होमवर्क अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं देख के और भी पोस्ट कर दूंगा। नहीं तो क्या मैं क्लास कल ले लें क्या इसे खत्म करने के लिए? ताकि नेक्स्ट वीक फिर होमवर्क डिस्कस हो जाएगा इसका। सर कल हमारा टेस्ट है। टेस्ट कब से कब तक है? टेस्ट के बाद इवनिंग में होता है हमेशा।
चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक ही लेते हैं। सर टेस्ट में चैप्टर आने वाला तो कहाँ तक आएगा? किस बेच का बोल रहे हो, एमपी या जेपी? एमपी। ये चैप्टर आने वाला है, नहीं आएगा फिर ये चैप्टर। क्या बताया था टेस्ट का सिलेबस तुम्हें? 12th की फिजिकल केमिस्ट्री पूरी। हाँ तो ये चैप्टर जहां तक हुआ है वहां तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा बस। कल जेपी का भी टेस्ट है, एमएमटी, उसका टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली वो 10 बजे से ही होगा। मतलब जो भी तुम्हारे 3 आवर के टेस्ट हो 10 बजे से हो। और भी अपडेट कर दूंगा मैं ग्रुप पे जैसा भी रहेगा। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी।